I will continue with the same topic which I was teaching for the previous 3 days, that is coronary diseases. Okay, so that in that lead, now today I would explain about the arteriosclerosis and arteriosclerotic plaques and the questions which can arise from this particular topic in the NEET examinations. Okay, so first of all we are going to learn about the arteriosclerosis. What do you mean by the term arteriosclerotic plaques? So for that you will consider an artery. Okay, so this is a medium to large lumen artery. Okay, what topic I am taking is arteriosclerosis. Okay, so this is a medium to large lumen artery. Anything which I mention over here has to be taken very carefully. When I have written over here medium to large lumen artery, then you must consider only medium to large lumen artery. Okay, now the blood was seemingly flowing from this side. Okay, after some time, say in middle ages of around 40 to 45 years of age, what happens? Some of the monocytes gets converted into macrophages. See, now what I am trying to tell you is very important. With age, as the age progresses, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है और मिडिल एज अधेड़ा अवस्था में पहुंचता है around 45 to 50 years of age, तो क्या होता है कि this is a probable, a chance phenomena which will occur, that the monocytes are converted into macrophages, and these macrophages attack which layer of the capillary? Theca intima. Now this is a very important question. These macrophages, they are going to attack theca intima. Theca intima of the vascular endothelium. See, the theca intima is the layer which lies between vascular endothelium and theca media. Again, this can be a very important question for you people. You might consider it like theca intima is the layer in which the these macrophages attack, and what will they do? They will encroach the surface. Encroach the smooth surface. They will encroach the smooth surface. Now once this smooth surface of the vascular endothelium is encroached, there is a recruitment of LDL protein which is already present in the blood. LDL यानी कि low density lipoproteins. After the encroachment of the smooth muscles, what happens? There is recruitment of LDL, that is, LDL stands for low density lipoproteins. इस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का जब थीका इंटिमा में रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होने का मतलब वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं, उसके बाद इस एलडीएल का होता है ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाए. The oxidation of LDL leads to sclerosis. स्क्लेरोसिस का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलास्टिसिटी. देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी आर्टरी होती है वो बहुत ही इलास्टिक होती है. ओके, आवर आर्टरी आर
elastic. Arteries are elastic, but due to oxidation there is loss of elasticity. Okay, this phenomena is known as sclerosis. ठीक है, दिस लॉस ऑफ इलास्टिसिटी. अब इस लॉस से होगा क्या? ठीक है, अगर आर्टरी इनइलास्टिक हो गई तो क्या हो गया? द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द इनइलास्टिक स्क्लेरोटिक वेसल्स फ्लोज विद अ हाई प्रेशर. ये कारण हो जाता है. द बीपी और द ब्लड प्रेशर राइजेस in this particular artery which has lost its elasticity by the eventual deposition of oxidated products of the low density lipoproteins. इनके subsequent deposition की वजह से elasticity lose हुई, जिसकी वजह से जो blood flow कर रहा था उसका जो pressure है वो कम हो जाता है इन arteries में. ठीक है, ये जो artery है इसमें ये कम हो जाएगा. ठीक, तो दिस इज अ कॉज ऑफ हाई बीपी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है. अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? धीमे धीमे क्या होता है कि एज द ब्लड रन ओवर्स दिस रफ सरफेस, भाई ये रफ सरफेस हो गई ना, एनक्रोचमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस हैव प्रोवाइडेड अ रफ सरफेस. ठीक, ये रफ सरफेस है, ये एनक्रोच्ड एंडोथेलियम है. इसके बाद ये जब ब्लड है, ब्लड की टेंडेंसी ये होती है बेटा कि व्हेनेवर द ब्लड रन्स ओवर द रफ सरफेस इट क्लॉट्स. फ्रिक्शन फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है उसमें, वो क्लॉटिंग कास्केड में आपने पढ़ा हुआ है. तो व्हेनेवर द ब्लड रन्स ओवर द रफ सरफेस इट टेंड्स टू क्लॉट. ठीक है, एंड दिस रफ सरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द एनक्रोचमेंट ऑफ द स्मूथ सरफेस बाय द मैक्रोफेजेस. ठीक, यहां पर धीमे धीमे करके इट्स अ वेरी इवेंचुअल प्रोसेस, वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. इसकी शुरुआत जो होती है वो हमारे एज में 30-35 के एज में हो जाती है, और आगे चल के अराउंड 60-65 की एज में ये चीजें बहुत परेशान करने लगती हैं इंसानों को. ठीक है, तो लगभग सभी में होती है ये स्टेनोसिस जो है, ये स्क्लेरोसिस जो है, ये जो हो रही है, ये लगभग सभी में होती है. बस कुछ लोगों में कोरोनरी आर्टरी में हो जाती है जहाँ पे हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है. अदरवाइज हाथ की जो छोटी छोटी नर्व्स हैं इसमें भी आर्थेरोस्क्लेरोसिस होती है. ठीक है, सो देयर आर वेरियस अदर वेज. पैर में जहाँ भी आर्टरीज हैं, मीडियम टू स्मॉल स्केल्ड आर्टरीज हैं, तो वहाँ पर ये आर्थेरोस्क्लेरोसिस होती है. ठीक, अच्छा ठीक है, तो दिस वाज ऑल. दिस इज कॉल्ड द इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ आर्थेरोस्क्लेरोसिस. Now a very similar related word known as arteriosclerosis, which I am going to discuss with you today. The other word is arteriosclerosis. Now what's the difference between the two? The arteriosclerosis and the arteriosclerosis. The first point difference तो यही मैंने बताया था कि मीडियम और लार्ज ल्यूमेन आर्टरी जो होती हैं वो आर्थेरोस्क्लेरोसिस की होती हैं, जबकि जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है वो हमेशा स्मॉल आर्टरीज में होता है, स्मॉल आर्टरी में होगा. ठीक है, तो ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया. इसके अलावा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में भी इलास्टिसिटी का लॉस हो जाता है. देयर इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी. व्हाट आर द फैक्टर्स विच प्ले रोल? ब्लड में प्रेजेंट और भी कई कंपोनेंट्स हैं जो कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या आर्थेरोस्क्लेरोसिस में हेल्प करते हैं, एड ऑन करते हैं, एडजुवेंट होते हैं. उनके नाम हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है बेटा ग्लूकोज का. अगर हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट है तो वो इनोसिटॉल के रूप में लगातार आर्टरीज की अंदर की वॉल पे डिपॉजिट होता रहता है. The high amount of glucose running in the diabetic patient, and this high amount of glucose eventually, gradually, insidiously gets deposited into the arteries in form of inositol, leading to loss of elasticity again. ग्लूकोज के अलावा दूसरा एलिमेंट जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन इलास्टिसिटी के लिए या लॉस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए, उसका नाम है कैल्शियम.
ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट इज कैल्शियम, नॉट कैल्शियम, इट्स कैल्शियम। सो ग्लूकोज है, कैल्शियम है, दीज आर द थिंग्स विच आर को फैक्टर्स, को एग्रावेटिंग फैक्टर्स इनको कहते हैं। तो ये जो है ये एड ऑन करते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में, ठीक है, विच इज अगेन द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये आता है कि साहब इसको ट्रीट कैसे करना है, हमें इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको मैंने उसमें बताया था कि हम इसकी एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोप्लास्टी में हम करते क्या है, एक स्टेंट डालते हैं कैथेटर के माध्यम से। मैंने आपको वो चीज़ पिछले लेक्चर में बता रखी है। तो जो पिछला लेक्चर बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये है कि मान लीजिए कि साहब यहाँ पर ये क्लॉट आ गया है, तो इस क्लॉट को हमको रिमूव करना है। तो व्हाट वी डू बेसिकली, एक कैथेटर के माध्यम से हम यहाँ पर एक इसको ड्रिल करते हुए स्टेंट डालते हैं और फिर इसको बाहर की ओर खींचते हैं। जब बाहर की ओर खींचेंगे तो व्हाट हैपेंस कि दिस थिंग पुल्स इट ऑफ, ये इसको बाहर ले जाएगी और जो कैपिलरी होती है वो वापस स्मूथ हो जाएगी और इसमें से ब्लड वापस से पास करने लगता है, ठीक है। तो ये इसके अलावा मैंने आपको CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बारे में वहां पर बताया हुआ है, जिसमें पेशेंट की सैफिनस वेन को एज अ ग्राफ्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था, आर्थेरियोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसको भी आपको पढ़ना था। जब भी ये डायग्नोज होता है, अब इसका पूछते हैं डायग्नोसिस कैसे होती है, तो इसकी डायग्नोसिस के लिए जो है वो हम एंजियोग्राफी करते हैं। और एंजियोग्राफी के अलावा जो है हम क्या करते हैं इसमें, स्कैनिंग, कलर डॉपलर करते हैं। कलर डॉपलर की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि साहब वो पर्टिकुलर क्लॉट जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो डिसैमिनेशन जो है ना हो उसका, और हम ऊपर से सबकुटेनियस, इसको कहते हैं परकुटेनियस इंटरवेंशन, तो हम परकुटेनियसली इंटरवीन करके इस क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग, ठीक। तो टुडेज लेक्चर आई वुड बी डीलिंग विद दीज थिंग्स। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग और ECG के बारे में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स भी डालूंगा जिसको कि आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।